So last class we discussed what actually framework is, why do we need frameworks, why people develop, how can we framework मतलब बहुत सिंपल आप उसका code and it can be written in different languages Java में अलग अलग कुछ Java based frameworks के collection is one Hibernate is frameworks. Frameworks are solution of solution are provided for a problem. What are frameworks? The frameworks can be free as there are a lot of open frameworks which you can using frameworks can speed up the application. ऐसा कोड हो सकता that is such things you can avoid can use आपका application and frameworks are nothing but semi developed और थोड़ा कोड ऐड करते हो रनिंग ऐप नाउ टू कंटिन्यू फर्दर हमने देखा था कि इफ आई वांट टू वैल्यू करना है क्रिएट दैट मीन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आपको बहुत एंड द डेटा विल बी स्कैटर्ड इन और उतने सारे वेरिएबल्स क्रिएट टाइम टेक and managing that with number of variables is also concern so avoid that way और फिर हमने यूज किया array so using array we can hold multiple values simple manner और uh, it was one of the solution think for multiple के बाद हमने और कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी array का face lot of issues so what are the issues using array can store values that we know we can store homogeneous homogeneous हेट्रोजीनियस भी रख सकते हैं लेकिन उसके आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूजुअली भी देन आइदर देयर विल बी शॉर्टेज और वेस्ट अगर आपने एरे क्रिएट किया इज कैलकुलेटेड एज दैट कैन नॉट इंक्रीज और दैट डिक्रीज so because of that there will be either shortage or waste. Then we talked about there are certain issues with the array also अगर आप कोई array में डेटा इंसर्ट करते हो या डिलीट तो इंसर्ट करते हो तो देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स टू द राइट डिलीशन करते हो शिफ्टिंग अगर मेरे पास लेट्स से 1 बिलियन का एरे है और मैं फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट डिलीट कर व्हाट विल हैपन ऑल द एलिमेंट्स विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट राइट डिलीट कर सेट करता हो तो ऑल द एलिमेंट्स विल बी शिफ्टेड टू द राइट एंड as we know that if I want to insert some data into particular array remove करना है delete सर्च करना है sort करना है हर एक रिक्वायरमेंट की डेवलपर इस और ऐसी बहुत सारी आपके पास एरे के ड्रॉबैक्स एडवांटेजेस भी हैं ड्रॉबैक्स एडवांटेजेस ये है कि एरे जैसा ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी डेटा है फिक्स है तो आप चेंज नहीं करने वाले तो कुछ आप उस पर कोई ऑपरेशन नहीं बस रीड ऑपरेशन इन एरे इज द बेस्ट चॉइस देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज कलेक्शन तो कलेक्शन हमने देखा कि कलेक्शन जावा बेस्ड contains some classes and you do not need to add the collection externally it is part of standard JDK and what is the use of this collection framework find set of use of collection that hold multiple values can be of same type or it's of the unit collection is kind of a container which is helpful for multiple
The values can be of same type, values can be of different type. The single. So what are the advantages के बारे में हमने डिस्कस किया. So we can hold growable number of data. तब आपको एडवांस में पता होने की जरूरत नहीं कितना सारा डेटा मुझे. So you can keep on adding the elements. You will not have the shortage of memory. जब तक आपके पास एक्चुअल फिजिकल मेमोरी है आप add कर सकते. Now there is one other thing. There is no shortage. उसके बाद we can hold homogeneous as well as heterogeneous. And collection provides lot of predictors which will help you to perform of values. क्या कर सकते हो आप? ऐड कर सकते हो वैल्यूज, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, और बहुत सारी ऑपरेशन. और यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज किया था कि कलेक्शन आपको बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टर्स देते हैं और algorithms. So data structures are provided through classes and algorithms are provided through. Data structure is nothing but a container using which we can the data. On a given structure or a container, we can different operation algorithms. Algorithms are nothing than operation. So what can be the operation? Add data, remove, search, sort, cycle. All of these operations are but now there are a lot of data structures available in the market. Array, linked list, stack, queue, graph और भी बहुत ज़्यादा है. के बारे में डिस्कस किया था. और फिर हमने फाइनली कलेक्शन हायरार्की. व्हाट इज दिस हायरार्की? कलेक्शन फ्रॉम classes interface which are already defined there and which are present in java.ut. java. और मैंने आपको गो थ्रू करने के लिए बोला था सारी क्लासेस में बताई थी. आई विल जस्ट क्विकली go through that hierarchy. Now can you tell me what is the top class is a root here, the collection, the root. What is iterable? Iterable is extended by collection is extended by right. And list interface is by array list. Is right. ये सारे क्लासेस है सर, concrete class. And collection is also extended by set interface uh, by asset is a class or asset is extended by set is again further set set navigable set is implemented. It is then collection is further
further, right? Right? Yeah. Priority queue the class, and it is also important, right? Now there is no new class link. The only the same class. अलग से linkly यहाँ पर अलग just quickly table is interface list is set classes. There, that not only this, lot of इतना मैंने आपको एक और हायरार्की दिया था आपके लिए is that map the right hash map, right? Of फिर याद रहेगा now we'll talk about one by one uh, अब ये हायरार्की बहुत काम का है बोथ इंटरव्यू के लिए भी एज वेल एज का यूज करके आप बहुत ज़्यादा कोड लिखने वाले हो और आप इंटरव्यू अभी इसमें से सबसे पहले टॉप में कौन सा क्लास है इटरेबल इटरेबल क्या है इज अ इंटरफेस राइट द इंटरफेस इंटरफेस कैसे बनाते हैं हम अब ये जो इटरेबल है ना ये कौन से पैकेज में है
छोड़ के बाकी सब जावा डॉट इटरेबल इज डॉट लैंग पैकेज के बाकी सब डॉट फिर व्हाट इज द इंटरफेस नेम इटरेबल राइट। अब आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इंटरफेस इज क्या नाम है उसका। अब इसके अंदर कुछ तो होगी, इसके अंदर कुछ उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है और ये रिटर्न क्या करती है, कर जाए पढ़ो इसको। Variable is a interface contains one method. What is the name of the method? Iterator. And what that method returns? Iterator. What is this iterator? This iterator, ये हाईलाइट वाला iterator। हाँ, रिटर्न टाइप करेक्ट। अब ये मेथड कौन से टाइप का इटरेटर करना, इटरेटर। अब ये इटरेटर क्या है, इटरेटर है एक एज नेक के बाद है अभी ये इंटरफेस प्रेजेंट है जावा डॉट लैंग पैकेज डॉट थोड़ा देखो तो ऊपर और क्वेश्चन। नाउ ये क्लियर है। नाउ देयर इज वन क्लास कॉल्ड एज ए class called class class A implement iterable. What I have to do? Class A implements iterable। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, class A
वेरिएबल किधर है? मेथड है, वो भी मेथड, तो इधर ओवरराइड करना ऑपरेटर, और इधर आपको कुछ अभी के लिए मैं रिटर्न मेथड ओवरराइड किया आपने। अब मुझे बताओ रिटर्न मुझे क्या करना है? अभी मैंने इटरेटर टाइप का रिटर्न कर, तो इटरेटर टाइप का मतलब मुझे डेटा अब ऑब्जेक्ट विच ऑफ टाइप इटरेटर रिटर्न करना, तो मुझे यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मैं इटरेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, व्हाट इज इटरेटर? इंटरफेस है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ इटरेटर का, क्या करना पड़ेगा? चाइल्ड क्लास क्रिएट कर, ठीक, मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्लास ITR। अब मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, रिटर्न न्यू, लिख सकता हूँ ऐसे। कर सकता है ऐसे। यस, तो पहले लेट मी राइट दिस, आईडी भी आ जाएगा आपको। व्हाट इज इट? इटरेबल is an interface present inside the Java dot lang package. It contains what it contains one abstract method that click that click. How does it look like? You can job table यहाँ पर आपको मिल, it is extended by, यहाँ तक। Now what is iterator? Is also interface, is also interface, is an interface present
java dot util package. How does it look like? Is iterator for that method. Boolean is object as next. Clear है? अभी आप दोनों में थोड़ा देख पाओगे आप here क्लियर है दोनों थोड़ा आइडिया आ रहा है जस्ट हैव अ लुक ऑन हैव अ लुक ऑन नाउ अभी मैं एक और थोड़ा इधर लेके जा रहा हूँ जस्ट थिंक ऑफ दिस एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ क्लास ए पे क्या करना पड़ेगा सिंपल है ये जो मेथड दिख रही है यहाँ पर मुझे ओवरराइड करनी सिंपल अभी रिटर्न क्या करना पड़ेगा टू रिटर्न समथिंग एल्स रिटर्न क्या करना पड़ेगा टेल मी क्या रिटर्न करना पड़ेगा मुझे इटरेटर अभी इटरेटर रिटर्न करना मतलब उसके टाइप का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करना उसका तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो जो इंटरफेस है ये ऐसा कुछ रिटर्न करना पड़ेगा न्यू आई टी आर अभी क्या करना पड़ेगा मुझे क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी मेरे पास दूसरी क्लास आई टी आर एलिमेंट्स के अंदर मुझे मेथड्स लिख दो मेथड समझ रहे हो राइट आप लोग वैल्यूज फिर ये समझ में आ रहा है आप लोग को यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इटरेबल इटरेटर क्लास से दो इंटरफेस है और दो क्लासेस है एक इंटरफेस इटरेट को करता है इम्प्लीमेंट इटरेबल के अंदर हमने मेथड ओवरराइड करी के बाद फिर क्लास ए के जो अंदर मेथड ओवरराइड करी एज वेल एज हमने क्लास आई टी आर में भी ये दोनों क्लियर है तो यहाँ पर इटरेबल इसने ओवरराइड यहाँ पर इम्प्लीमेंट और इटरेटर को में आ रहा है व्हाट आई हैव डन नाउ आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट काम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए इक्वल टू
तो ए का रेफरेंस में कौन सी मेथड कॉल कर सकते हैं? दिस इटरेबल इटरेटर क्लास ए के अंदर कौन सी ए डॉट इटरेटर, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? कौन से टाइप का डेटा मिलेगा मुझे? इटरेटर आर इक्वल टू डॉट, ये क्लियर समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? ए डॉट इटरेटर मतलब रोल आएगा ऑब्जेक्ट में। अभी इस रेफरेंस का यूज, रेफरेंस कॉल करने वाला हो कौन सी मेथड? टेल मी व्हिच मेथड्स आई कैन कॉल यूजिंग आईटीआर डॉट as next, here dot next, और कॉल कर सकते हैं। तो है नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका पूरा लॉजिक टेस्ट हो रहा है। रिटर्न्स एज मेथड ओवरराइडिंग का सारा यहाँ पर चेक हो रहा है। पहले तो इटरेबल है, इटरेबल के अंदर एक मेथड है, क्या नाम है उसका? इटरेटर। और क्या करती है? इटरेटर। फिर इटरेटर क्या है? इट इज ऑल्सो इंटरफेस। नेक्स्ट, ये भी इंटरफेस है। अभी मैंने क्या किया? इटरेबल का सब क्लास क्रिएट किया, ए इम्प्लीमेंट्स दैट इटरेबल, और मैंने राइट करी, तो राइट करी, रिटर्न क्या करता है? इटरेटर। अभी रिटर्न में मैंने वहां पर एक लॉजिक लिखा, आईटीआर। व्हाट इज आईटीआर? आईटीआर इज अ क्लास ऑफ टाइप इटरेटर। और आईटीआर के अंदर कौन सा लिखेंगे हमें? हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड, फिर मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना और ए क्लास का रेफरेंस कॉल कर सकते इटरेटर। इटरेटर ने मुझे रिटर्न क्या कर दिया? इटरेटर। फिर इटरेटर का जो रेफरेंस मिला उसका यूज करके हैज नेक्स्ट। आपको ये सब कुछ मतलब मैं एक लाइन में बोल सकता था होना चाहिए हाउ इट इज। अब ये सब कुछ इसलिए मैंने आपको बताया, रीजन, जो इटरेटर जो कॉन्सेप्ट का यूज करके आप गिवन कंटेनर है, कलेक्शन सेट करने, क्या करने वाले हो? एक एक एलिमेंट रीड करने वाले। कब तक? जब तक एलिमेंट, अभी आइटरेटर के अंदर आपको मेथड दिख रही होगी हैज नेक्स्ट एंड, so has next method will continuously return true till the time we have elements in the container। जैसे elements नहीं होंगे तो बाद रिटर्न करेगा false, ये भी हम रुक जाएंगे। तो नेक्स्ट मेथड क्या करेगा हमको? it will get the element and it will move the cursor to the next element will। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या करने, we are simply read the elements from the given, right? So what is the use of iterator? Iterator is uh, retrieve the elements and container. Now next, we have the collection interface is extending extends iterable। iterable के अंदर जो मेथड है वो पास होगी, collection is also interface। collection interface is by list is by array list। या आप मुझे बताओ array list क्लास, अभी हमने हमारे पास तीन रिक्वायरमेंट है लिस्ट से। अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू सी सम लिस्ट इंप्लीमेंटेशन क्लासेस, अगर आप चाहते हो, do with the set
रिक्वायरमेंट था was that 2 you want to see the elements purpose we go with the पहला हम जाएंगे अभी लिस्ट तो लिस्ट कलेक्शन देखते हैं उसकी क्या क्या मेथड्स है अभी कोई भी कंटेनर हो उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो कोई भी कंटेनर का ऑपरेशन सबसे पहला एक ऑपरेशन ऐड सिंगल एलिमेंट कैन ऐड अ सिंगल एलिमेंट you want to add multiple elements 10-15 elements you want to add in the container you want to remove single element you want to remove single element ये ऐसा भी मल्टीपल एलिमेंट रिमूव ऑल सारे एलिमेंट डिलीट नहीं करेगा इट विल रिमूव उसके बाद मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स डिलीट करना है क्या करना है सारे के सारे क्लियर क्लियर से क्या हो गया पूरा कंटेनर अब मेरे पास एक और जावा 8 में फीचर आया है रिमूव अभी लेट से मेरे पास 100 वैल्यूज है 1 to 100 और मुझे कुछ कंडीशन कि मुझे जो भी ऑड नंबर है वो डिलीट कर दो इवन नंबर्स डिलीट प्राइम नंबर्स डिलीट परफेक्ट नंबर बेस्ड ऑन सम कंडीशन बेस्ड ऑन सम फिल्टर यू कंडीशन या क्राइटेरिया देन यू गो विद द ये हो गया ऐड उसके बाद एक और है इसके में रिटेन डिलीट के केस में एक और है रिटेन रिटेन ऑल अब ये रिटेन ऑल क्या करता है आप बोलते हो कि ये 5 एलिमेंट छोड़ के बाकी सब डिलीट आप बोलते हो ये 5 एलिमेंट रखो बाकी सब डिलीट अब ये आप मोस्टली आप फेस करते हो जब आप इंटरव्यू में जाते हो सेक्शन लिस्ट 5 लोग प्लीज स्टे एंड रेस्ट ऑफ द गाइज दैट इज रिटेन ऑल दैट रिटेन ऑल दैट ये हो गया आपका उसके बाद और आप क्या चेक कर सकते हो ये इसका साइज कितने सारे एलिमेंट्स है इसके अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर आप ये भी चेक कर सकते हो ये खाली है या नहीं इज एम्प्टी रिटर्न करेगा ट्रू अगर कंटेनर अगर कंटेनर एम्प्टी नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स ये हो गया ऐड रिमूव और क्या कर पॉसिबल ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन कंटेंट्स तो कंटेंट्स क्या करता है आपका सर्च सिंगल ऑब्जेक्ट एक सिंगल वैल्यू आपको चेक दूसरा एक और वर्जन है क्या कंटेंट्स ऑल मल्टीपल वैल्यूज जैसे आपको ये रिजल्ट लगता है आप अकेले का रिजल्ट देख सकते हो दैट इज कंटेंट्स आपका ग्रुप है बोल सकते हो कि भाई हम सबका रिजल्ट देख के आओ कंटेंट्स ऑल ये मल्टीपल और क्या ऑपरेशन पर कोई भी कंटेंट ऐड हो गया साइज हो रीड करना एलिमेंट्स मुझे रिमूव नहीं करना मुझे बस क्या करना है कौन कौन है उस तो रीड करना है क्या करना है रीड तो रीडिंग के लिए आपके पास क्या है आपके पास iterator fetch करना these are the operations are available on every other container कोई भी कंटेनर हो डुप्लीकेट वाला हो या यू सब में ये सारे ऑपरेशन मिनिमम हो ये सब में गारंटीड होगा ही होगा ये सारे ऑपरेशन गारंटीड ये कैसे गारंटी उन्होंने अचीव किया सिंपल क्या किया उन्होंने वहां पर एक कलेक्शन नाम का इंटरफेस दे दिया तो व्हाट इज कलेक्शन पहले तो फ्रेमवर्क है तो कलेक्शन इट इज एन इंटरफेस is part of collection present in java.util ये क्या है कि इंटरफेस इज पार्ट ऑफ कलेक्शन प्रेजेंट इनसाइड java.util
अभी इसमें क्या है, तब ऑब्वियस क्या होगा, इट कंटेन्स सेवरल सेट्स आर मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ द, कोई भी कंटेनर हो कलेक्शन, कोई भी कंटेनर हो उसमें ये सारे ऑपरेशन, क्या क्या ऑपरेशंस है, मेथड्स ऑफ, व्हाट आर द ऑपरेशंस, मेथड्स और ऑफ, से आपको बहुत ज़्यादा लिस्ट है, दे रहा है। See here is an interface java dot contains टेबल, और यहाँ पर आप देखो दिखाई दे रही होगी साइज टू एरे, टू एरे मेथड में ऐड करना, मतलब अगर आपको गिवन कलेक्शन एरे में कन्वर्ट करना है, ऐड करना सिंगल एलिमेंट, रिमूव करना एलिमेंट, कंटेन्स और मल्टी, विल टॉक अबाउट दैट, ऐड ऑपरेशन का, ऐड रिमूव ऑपरेशन बाद आपका रिमूव, कंटेन्स, और ये कुछ आपको सम जावाइट स्टार्टअप्स, यहाँ पर इक्वल्स और हैश कोड मेथड में उन्होंने कहा क्या, तो ऑब्वियसली इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड हर एक इसमें, ये भी उन्होंने ऐड किया, दैट दैट वाज नॉट एक्चुअली, देन यहाँ पर कंटेन्स ऑल, और यहाँ पर एक और मेथड है कंटेन्स, ये मेथड से पास क्विकली ऐड ऑफ, ओके, आप देखो यहाँ पर ये सारी मेथड्स, अब ये साइज मेथड क्या करते हैं, व्हाट दिस साइज मेथड रिटर्न हाउ मेनी, this how many, this method that returns the container of elements of, now what do you think this is empty method, what it must be returning, this returns to the container is else, what this two array method must be doing, tell me,
दिस कन्वर्ट्स कलेक्शन, तो अभी कलेक्शन एरे में कन्वर्जन, एरे ऑफ कलेक्शन, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स में जाए। अगर आप चाहते हो कि लेट से मेरे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, क्या है आपके पास लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, और आप चाहते हो कि मुझे एरे ऑफ इंटीजर चाहिए, दिस कन्वर्ट्स कलेक्शन इनटू स्पेसिफिक टाइप, करता है वो स्पेसिफिक टाइप में करता है। अगर इंटीजर का लिस्ट है तो इंटीजर क्या है तो string में करना। नाउ इफ यू सी दिस पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ये मेथड क्या करता होगा, व्हाट डू यू थिंक? एड्स सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना। नाउ व्हाट डू यू थिंक दिस ऐड ऑल थिंक? ऐड ऑल क्या करता होगा? एड्स मल्टीपल वैल्यूज द कंटेनर और कलेक्शन, 10 वैल्यू एक साथ ऐड करना। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, दिस रिमूव ऑपरेशन, दिस remove operation, what this, the single element, then what do you think about this method? Push multiple element, like ये चार चार एलिमेंट। रिमूव इफ, अब यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा जावाइट हमने पढ़ा था। प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इज प्रेडिकेट? इट इज अ फंक्शन इन द फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। व्हाट इज दैट मेथड? इट कंटेन्स, मेथड का नाम है टेस्ट, मेथड का नाम टेस्ट, रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। प्रेडिकेट के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट, और वो रिटर्न करता है और फॉल्स, एक्सेप्ट करता है कुछ एलिमेंट, इट विल एक्सेप्ट टाइप का, और रिटर्न करता है और लिखेंगे। अब ये रिमूव इफ मेथड क्या करता है? एक्सेप्ट्स द predicate and removes the element, and removes the element एग्जाम्पल 100 नंबर है जो डिलीट करने के, जिनका मेरे पास लिस्ट ऑफ मार्क्स है किसी, तो उसमें क्या करना, डिलीट करना है जिनका परसेंटाइल 50 से कम है, ज़्यादा है, इवन नंबर से। आपके पास ऑप्शन है, यू कैन स्पेसिफाई द क्राइटेरिया व्हाट बेसिस पर आपको एलिमेंट्स डिलीट करना। रिटेन ऑल, अभी मैंने आपको बोला था क्या करता होगा, keeps specified elements, deletes the, एग्जाम्पल आप जब इंटरव्यू जाते हो या सिलेक्शन होता है, उनको बोला जाता है रुक जाओ, बाकी गो बैक। नाउ व्हाट इज दिस क्लियर? इट रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स, सब कुछ डिलीट कर दो अभी, पूरा खाली, कोई सेलेक्टेड। बहुत दुखदायक होता है, बताएं कैसे बोल, सेलेक्टेड था तब साल पहले, तो लोग आते थे दो, बाकी लोगों को बोलना टाइम। चलो कंटेंट्स ऑल, क्या करता है ये, क्या करता है ये, चेक्स इफ मल्टीपल एलिमेंट आर
प्रेजेंट है सारे के सारे, देन रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अभी इक्वल्स एंड हैश कोड आपको ऐसे दिया है, इक्वल्स एंड हैश कोड उसको ओवरराइड करके आपको पता है कि इक्वालिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट। अब अभी मुझे क्या करना है, इक्वल्स मेथड और हैश कोड मेथड, कोई भी कंटेंट का इक्वालिटी चेक करना है। लेट्स से एरे लिस्ट, दो एरे लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट, उसका इक्वालिटी कैसे चेक करना, दैट ये जावा 8 का फीचर से कुछ इटरेटर स्ट्रीम, विल टॉक अबाउट दिस स्ट्रीम एपीआई। ओके, यहाँ तक क्लियर है व्हाट इज कलेक्शन कंटेंट्स। नाउ कलेक्शन इंटरफेस यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसे, collection does not have direct does not have any direct implementation। का मतलब क्या हुआ, collection does not any direct implementations। डायरेक्ट का कोई डायरेक्ट सब कॉन्क्रीट है नहीं। कलेक्शन इंटरफेस इज एक्सटेंडेड बाय, collection is extended by iterable collection list set queue। तो collection interface extended by list set। अभी एक एक लेयर जा रहे हैं हम, इटरेबल कलेक्शन लिस्ट, लिस्ट पहले खत्म करेंगे पूरा, और बाद फिर जाएंगे सेट, इम्प्लीमेंटेशन फिर क्यू। ठीक है, बहुत टाइम लगने वाला है, एक कोई समझो सही से तो आपका बाकी सब सेट। इफ यू सी हियर, अभी आपके पास तीन रिक्वायरमेंट्स है, लिस्ट सेट एंड क्यू। तो लिस्ट अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप चाहते हो डुप्लीकेट डेटा स्टोर, क्या गो विद द, अगर आप चाहते हो यूनिक डेटा स्टोर कर, गो विद द, अगर आपको कोई प्री प्रोसेसिंग ऑर्डर तो डुप्लीकेट। अभी आपको पता चल रहा होगा कि अभी ये हर एक क्लास एक रिप्रेजेंट करता है कंटेंट। तब ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, कंटेनर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। अभी आपके पास तीन डिफरेंट टाइप के कंटेनर है, अभी आपके साथ डिफरेंट टाइप के कंटेनर, एक कंटेनर विच आर which can store duplicate data, there is another set of containers data, there is another set of store element, तो वहाँ पर डुप्लीकेट भी हो सकता है, यूनिक, लेकिन वहाँ पर क्या है, ऑर्डर मिक्स, ऑर्डर फिक्स है। तो इफ यू वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ प्री ऑर्डर भी, समझ में आ रहा है, इतने सारे कंटेंट, ये जो सब कुछ दिख रहा है आपको क्लासेस, एवरी क्लास रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ कंटेनर। आपको इनको देख के समझ में आना चाहिए, दीज डिफरेंट ऑफ कंटेनर्स, दीज ऑफ कंटेनर्स। अभी हर एक कंटेनर का कुछ प्रॉपर्टीज है, हैविंग सम ऑफ स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग हो। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन, इटरेबल हैज व्हिच मेथड, इटरेबल हैज व्हिच मेथड, iterator। Now whether that iterator method is part of all of the classes, every other class having that method, there are 8 classes, there are 8 concrete classes. Now whether the iterator method is present in all of the classes, क्वेश्चन समझे, इटरेबल में कौन सी मेथड है,
iterator. Now, can you tell me whether iterator method is present in all of these classes? क्वेश्चन समझा? इटरेबल के अंदर जो मेथड वो बाकी सारे क्लासेस में प्रेजेंट है क्या? यस, नो? लोग बोल यस, व्हाई इट इज सो? बिकॉज द क्लास और एवरी अदर क्लास द पेरेंट इज अ पेरेंट, तो पेरेंट का जो भी डिटेल्स वो चाइल्ड क्लास में आता है कि नहीं आता? तो iterable method is also present, iterable methods are also present, are part of these class. तो array list क्लास है, array list एक क्लास दिखाई दे रहा होगा आपको, which is implementing list, list is extended by collection, collection is by iterable. तो array list को कितने सारे methods override करने पड़ेंगे? Everything from the list, everything from the collection, everything from the iterable. reset को कौन कौन से methods override करने पड़ेंगे? Everything from the iterable, everything from the collection, everything from the set, everything from the sorted set, everything from the will set. So 1 2 5 5 इंटर फिर खुद का कुछ मैथ, इतने सारे इंटरफेसेस। सिंपल ये क्वेश्चन में क्वेश्चन समझा आपको? Now we have three different requirements. If you want to duplicate data, which implementation classes your list implementation? List implementation classes मतलब ये सब classes कौन कौन से? Array list, linked list, vector and tag. If you want to store unique data, which implementation classes you are going to use? Set implementation. What are these? Has set, linked has set, and reset. If you want to store some kind of pre-processing order, you are going to go with the queue implementation, priority queue or linked list. Clear है? What is list? So why now my question is why they have created these many interfaces? The classic the class बना is an interface. First of all, it is an interface which extends is part of Java dot. अब मुझे बताओ लिस्ट एक्सटेंड करता है कलेक्शन, तो व्हाई वी क्रिएट अ सब ओवरराइड नहीं? पहला तो आपको कोड यूज और आपको और कुछ ज़्यादा फंक्शनलिटी करना है, प्लस आपको और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा, राइट? सो ऐड यूज एग्जिस्टिंग फंक्शन एज वेल एज ऐड न्यू फंक्शन। लिस्ट क्यों? पहले तो यूज एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी प्लस ऐड न्यू एक्स्ट्रा थिंग्स, राइट? तो लिस्ट व्हाई लिस्ट इज व्हाई सेट इज so that we can store so list has four implements. There are couple of implementations. So list implementations. What are the list implementation? List implementation मतलब सब क्लास कौन से है? Array list, list, vector and अभी कोई आपको पूछे इंटरव्यू में व्हाट आर दिस लिस्ट इम्प्लीमेंटेशंस ग्राफ, वो वर्ड बहुत बड़ा है लेकिन आपको समझना क्या है? यदि दे आर टॉकिंग अबाउट सब क्लासेस और चाइल्ड क्लासेस ऑफ लिस्ट। व्हाट आर दिस? एरे लिस्ट, लिंक। अभी लिस्ट में कब जाना है? अभी इन
इस एरिया में कब जाना लोकेशन क्लास। इफ यू वांट टू स्टोर डुप्लीकेट डेटा यूज if you go list iterable, here iterable contains a method called as iterator, 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 and iterable, if you see where it is present inside the java dot iterator. It is part of java dot this interface part of memory of collection. कब से java 1 point interface iterator contains methods has next और उन्होंने कुछ डिफॉल्ट मेथड्स भी रिमूव डिफॉल्ट मेथड इज डोंट वरी move method also there for each remaining this is java 8 feature uh, now then collection I was talking about. So collection is present in java dot package and this is part of बहुत सारी उन्होंने कहानी लिखी थोड़ा थोड़ा देखते हैं अपन. It is a root interface in the collection hierarchy. Collection represents a group of objects. Some collections allow duplicate elements, allow unique do not allow, and others do. Some are ordered, some are unordered. JDK does not have any direct implementations of this. So में direct implement. It provides implementation. Online, I am not sure. The root the JDK does not have any strict implementation that collection by list set. It provides implementations of collection को कोई direct sub implementation नहीं, sub interface. This interface is typically used to pass collection around and manipulate all general purpose collection classes collection directly sub interface should provide standard सब सबको उन्होंने बोला there are a lot of things लेकिन अभी आपको बस देखना क्या है क्या क्या मेथड्स size returns the number of elements the collection contains than
इंटीजर डॉट मैक्स एलिमेंट डॉट, मतलब वो एक कलेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, उन्होंने ऐसा बोला इंटीजर डॉट मैक्स एलिमेंट, उससे ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स है तो वो रिटर्न करेगा मैक्स का ही वैल्यू। देन वी हैव इज एम्प्टी रिटर्न्स ट्रू, कंटेन्स क्या करता है, checks, returns this collection contains the specific element, if element is not there it will return false। अभी उन्होंने बहुत कुछ टेक्निकली बताया, more formally returns to and only collection contains at least one। उन्होंने बोला है कि लेट से आपने नल पास कर दिया, अभी यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है देखो, check this conditional operator, oh that is object equal if it is true it is going to return null, it is going to call object, क्या करने वाले इंटरनली वो चेक क्या करता है कंटेंट्स, इट इज गोइंग टू चेक द इक्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अब वो प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब आप मुझे बताओ एक इंटीजर का लिस्ट और आप वहां पर सर्च सर्च होगा, इक्वालिटी वहां पर चेक, अगर प्रेजेंट है रिटर्न करेगा ट्रू। जो हम बात कर रहे थे अभी स्टार्टिंग में, इटरेटर रिटर्न्स एन आइटरेटर ओवर द एलिमेंट्स इन, देयर आर नो गारंटीज ऑर्डर इन, सिंपल इसका यूज क्या है, रिटर्न्स द एलिमेंट्स कंटेनर, if you want to convert the container into array we use array method, if you want to convert the given collection into specific type array then we use the to array, add a single element, remove single element, contains all, check if multiple elements are present in the given container, or add all, add multiple elements, remove all, remove multiple elements, remove if, remove elements based on the condition, and it is a default method java 8 में add किया है इसको, retain all, keep the specified elements and delete rest of the elements, clear removes all of the elements from collection, equals iterator and java 8 feature, in the बोल सकते आप kind of just to filtration purpose use कर सकते, parallel stream, this is also java 8 feature about this, let's go with the list is also interface, and if you see there are a couple of methods, methods, list extends collection, size is empty, contains all, iterator to array, और भी कुछ एक्स्ट्रा मेथड, एक्स्ट्रा मेथड्स क्या है, here index of, last index of iterator, get, set, add method, add specific, तो कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स उन्होंने राइट सम सेट के लिए भी दिए और सॉर्ट भी दिया उन्होंने, they have added some couple of extra things and sub list they have created, और फाइनली आपके पास है array list implements list random access serializable मार्कर इंटरफेस, serializable का मतलब होता है array list फाइल में से array list का ऑब्जेक्ट आप क्लोज object exist array list, random access is also marker and which is used to the random access
list interface as we extend abstract list top on top of that बनाए. This also adds some re added. Clear? Now, before I talk about array list, so why we are going to use list implementation? Why we are going to use implementations? We want to store. Yeah, we should. और एक ये आपका एक और काम कर. It maintains the insertion order. It maintains the insertion order of the elements. इसका मतलब क्या होता है? जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स ऐड करे वो ऑर्डर आपका फर्स्ट ना ऑर्डर में आपने एलिमेंट वो ऑर्डर मेंटेन फर्स्ट लेकिन ऑर्डर मेंटेन रहेगा. इट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर. और दो चीज आपको यहाँ पर फोकस करना है. डू क्लियर है? आई विल नॉट डायरेक्टली जंप टू द एक्चुअल क्लासेस. आपको एक सिंपल देने वाला हूँ. क्या असाइनमेंट है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं. आपको क्या करना है, एलिमेंट्स ऐड करना है. इंटीजर हो, स्ट्रिंग, कोई भी टाइप का, इन्फिनिट. तब वहाँ पर आप एरे यूज कर सकते हो. दैट इज परफेक्टली फाइन. या और भी कोई सोल्यूशन क्या करना है समझ. मतलब आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए एरे क्रिएट करते थे, तो अब मैं आपको ऑप्शन दे दूँ, आप एरे भी यूज. राइट. तो एरे का क्या इशू है मुझे बताओ. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एरे? अभी लेट से मैंने कुछ एक एरे क्रिएट किया और मुझे लगा कि मैं 100 वैल्यू स्टोर, 5 वैल्यू स्टोर, 10. यहाँ पर मैंने 10 वैल्यू का एरे. अब मेरा 10 वैल्यू स्टोर करने का लॉजिक, अभी मैंने कुछ 5 वैल्यू स्टोर, 50 वैल्यूज आपने स्टोर. अब मुझे दो और वैल्यूज ऐड करनी है. ये दो वैल्यूज एरे में ऐड कर सकते हो. तो इसके लिए क्या ऑप्शन है? वो अभी तक वो हमने देखा ही नहीं. ऑप्शन है रिमूव भी नहीं. अभी क्लास में कितने 30 बच्चे बैठ सकते हैं. क्लास को आप मतलब किसी को रिमूव तो नहीं कर सकते, को ऐड करना है. इसका कैपेसिटी फुल. तो कैन यू ऐड मोर एलिमेंट्स? कैपेसिटी फुल कर सकते क्या? फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? सबको एक साथ ही रखना है कि बैच लेना है. मेरे पास क्या ऑप्शन? कैसे तो बैठ जाएंगे. वैसे नहीं बोला. फिक्स है. इज फिक्स. आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है. एक नया क्लासरूम ले, और साइज, कैपेसिटी. लेट से पहला कैपेसिटी आपका 5 का था, मैं डबल कर देता हूँ. लेट से आप क्या करोगे, एक नया एरे क्रिएट करोगे जिसका कैपेसिटी अभी 10. पहले तो ये 10, पहले तो इनको प्रायोरिटी दे दो, ये ऐड कर दो इधर. कॉपी द कंटेंट ऑफ ओल्ड एरे इनटू, ये दोनों को इधर ऐड कर दो. ऐड दीज टू एलिमेंट्स 100 एंड. अभी भी फिर भी आपके पास जगह है और 8 लोग ऐड कर सकते. क्या किया, क्या सोल्यूशन? तो कुछ नहीं कर सकते आप क्या कर सकते, कैन क्रिएट अ न्यू एरे कैपेसिटी, कॉपी द कंटेंट ऑफ ओल्ड एरे एंड अपेंड द एलिमेंट. यहाँ पर शॉर्टेज है क्या? अभी अभी आपको क्या करना है बस,
दो चीज़ करना है। जैसे एरे फुल होता है, नया एरे क्रिएट करना है, और दूसरा क्या करना है उसमें, ओल्ड एरे का कंटेंट कॉपी करना है तो एरे में, और जो भी नया एलिमेंट आप ऐड करना तो आप क्या करो, सिंपल सोल्यूशन है, हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट्स डू दैट। एक सिंपल सा मुझे क्या करना है, डायनेमिक एरे बोल सकते हैं हम उसको, डायनेमिक। हम क्या करते हैं, एक इंटरनली एरे मेंटेन, उसमें कोई भी टाइप का डेटा हम मेंटेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एरे, इसमें आप सेम टाइप का या कुछ, अभी ये कुछ, अभी बस मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज, क्या कर दिया मैंने, इनिशियलाइज। ओके, so what I have done, I have created an array. अभी array create what I want to do, I want to maintain the size, कैपेसिटी बोल सा, कैपेसिटी, अभी इनिशियल कैपेसिटी में लिखता हूँ, कैपेसिटी 10, और दूसरा एक और वेरिएबल लिखता हूँ, साइज है, साइज, देयर आर टू थिंग्स, साइज एंड द डिफरेंस। कैपेसिटी मतलब अभी ये बॉटल का और यहाँ पर एक्चुअल कितना, अभी कैपेसिटी मतलब हाउ मच, तो 10 कैपेसिटी मतलब एरे का कैपेसिटी 10, कितना मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हैं? अभी है कितने, जो भी कर सकते हो उसमें, भी कुछ भी कंटेंट है, तो देर आर टू थिंग्स, कैपेसिटी और डिफरेंस, समझ में? कैपेसिटी मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम थिंग यू कैन डू, मैक्सिमम एलिमेंट्स यू कैन, और साइज मतलब एक्चुअल में है करेंटली। ठीक है, सिंपल। नाउ जैसे मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, जैसे मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपल सी एक बात करने को, एरे, क्या बोल रहा हूँ मैं, एडवांस सोल्यूशन। क्या किया मैंने अभी तक, बस एरे इनिशियलाइज किया और उसको दो वेरिएबल लिखे मैंने, कैपेसिटी और साइज। जैसे इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरे क्रिएट कर रहा हूँ विद कैपेसिटी, कितने का एरे क्रिएट होगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये समझ में आ रहा है सबको लॉजिक क्या कर रहा हूँ? अगर कोई कैपेसिटी देना चाहता है तो दे सकता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कैपेसिटी, इनिशियल कैपेसिटी। अगर यूजर चाहता है कि उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एरे क्रिएट हो, आप वो भी कर सकते हो। Correct? और ये आप अभी इनिशियल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, इफ initial capacity is greater than 0 and initial capacity is less than डॉट, तभी आप करोगे, वो कुछ देगा माइनस में, क्या होगा, माइनस में देगा तो क्या होगा, अभी क्या करोगे आप, साइज इक्वल टू
कैपेसिटी डॉट कैपेसिटी, और यहाँ पर लिखोगे आप कैपेसिटी, इस डॉट कैपेसिटी इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख दोगे डॉट, लॉजिक समझ, यूजर कुछ कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, कुछ वैल्यू देगा, उसका वैल्यू वो 0 से और इंटीजर मैक्स रेंज में, और कैपेसिटी का आपका वही वेरिएबल कैपेसिटी, कैपेसिटी के समझ में आ रहा है। आप दो ऑप्शन है आपके पास, एक डिफॉल्ट कैपेसिटी कितना है आपका 10, अगर यूजर बोलता है कि 100 कैपेसिटी का एरे क्रिएट करो, वो भी करके देंगे। क्लियर है दो एरे। अब मुझे क्या करना है, एरे में एलिमेंट ऐड करना है, क्या करना है मुझे, एलिमेंट मुझे ऐड करना है, एलिमेंट ऐड करना है। सो हाउ डू वी डू दैट, पब्लिक रिटर्न कर सकते हो बूलियन, या वाइड भी कर सकते हो, वाइड ऐड, और मैं एलिमेंट लेने वाला हूँ एलिमेंट, कोई भी टाइप का डेटा दो। अभी एलिमेंट किस में ऐड करना है आपको, एरे में। एरे में कैसे ऐड करोगे, पहले ऐड करने से पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपका एरे का साइज, साइज शुड बी लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी। इफ साइज इज लेस देन कैपेसिटी, देन ओनली यू विल, क्या लिखोगे आप, एरे ऑफ एलिमेंट, एरे ऑफ प्लस, पहले कितना है -1, -1 बन जाएगा, एरे ऑफ 0 इक्वल टू 11, फिर से आएगा, पहले 1 होगा, फिर एलिमेंट ऐड होगा। एल्स अगर नहीं है तो क्या होगा, साइज इज लेस देन, इज नॉट, साइज इज नॉट, क्या करना है, what we have to do, if the size is not sufficient, then what we are going to do, create a new array. Size is not sufficient, then what we are going to do, create a new array. तो array कैसे create, आप कोई भी लॉजिक लिख सकते हो, डबल का लॉजिक लिख, what we will do, we will create a new, what we are going to do, create a new array. The capacity will be times capacity, तो कैपेसिटी बढ़ गया, उस कैपेसिटी का आपने एरे क्रिएट किया, तो अभी नई कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी पहला वेरिएबल कितना, पुराना वाला कैपेसिटी वेरिएबल आपका पुराना वाला है ना, अभी भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कैपेसिटी टू, अभी नया कैपेसिटी पहले 10 था, वो 20 है, नया एरे भी क्रिएट हो गया, कैपेसिटी भी। अभी क्या करना है मुझे, क्या करना है आपको, एलिमेंट ऐड करना है, पहले कॉपी द कंटेंट ओल्ड एरे इनटू, क्या लोगे आप, एक फॉर लूप लो, आप फॉर लूप ले सकते, फॉर लूप में क्या ले आप, ऑब्जेक्ट लोगे आप, ओल्ड एरे पहले वाला, क्या करो आप, न्यू एरे ऑफ index will start from 0, index will be less than or equal, less than, less than कैपेसिटी, जो आपका ओल्ड एरे था, एरे डॉट, यहाँ पर क्या करना है आपको, न्यू एरे जो है आपका, न्यू एरे ऑफ इंडेक्स इक्वल टू एरे ऑफ एक्स, क्या ये कॉपी हो गया सब कुछ। अभी उसके बाद जो भी नया एलिमेंट आपको ऐड करना है, न्यू एरे ऑफ साइज इक्वल टू, और अभी नया आपका एरे क्या होगा, आपका एरे चेंज होगा ना, एरे विल बी इक्वल टू आपका
अब मुझे पता करना है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द गिवन साइज। आप लिख लो साइज, आप रिटर्न कर सकते हैं। चेक करना ये अरे आपका कंटेनर एम्प्टी है या नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हो बूलियन इज एम्प्टी, और रिटर्न क्या करेंगे हम, देन इफ साइज इज इक्वल टू 0 होगा। करेक्ट करते हो उसको 1, इसे मैंने बनाया आपका एरे डॉट ऐड। आप भी टाइप का चाहिए सब ऐड करो आप, टाइप भी आपको साइज पता करना है। कैसे पता करेंगे, एरे डॉट प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेट एलिमेंट ऐड कर दिया आपने। क्या करना है, एलिमेंट्स रीड भी तो करना है। एलिमेंट्स रीड करना है, कैसे रीड करोगे आप, रीड करना है। रीड करने के आप डॉट गेट मेथड को आप डाल सकते हो। सारे को मैं पब्लिक करके आप कर सकते हो फॉर लूप का एरे डॉट, समझे, एरे डॉट एरे मतलब एरे के अंदर जो मेहनत कर रहे हैं ना ऑलरेडी करके रखिए। देखो यहाँ पर मैं बहुत सारे एलिमेंट, these are more than 20 भी हो सकते हैं। बाकी सारे एलिमेंट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कैसे क्या होगा, इंडेक्स आउट ऑफ साइज इंक्रीज, साइज आपका बढ़ गया ना, 10 हो गया। कर सकते हैं ना, -1 से, हाँ फिर भी वैसे साइज बराबर ही रहे। देख लेना है।
बट लॉजिक समझे आपको क्या करना है? व्हाट वी डू, array is what we do, create new array with new capacity, copy the content of old array into new, append the सब कुछ जो हमने किया है array list. So tomorrow we'll be starting with array list explore.